Shivaji Group of Institute online classes. Students, this is your chemistry class. Today we are going to start with Unit 2, Properties and Uses of Hydrogen. Student, what is hydrogen? As I have already told you that hydrogen is a non-metal because of the some properties that it exists in the gaseous state in the nature. Today we are going to discuss about physical properties of hydrogen gas. Starting with color, odor and taste. Pure hydrogen is colorless gas. It is also tasteless gas and odorless gas. Number 2. Vapor density. Hydrogen is the lightest element present in the periodic table. Its vapor density is 1 as compared to air being 14.4. So it is very light gas. We can prove it with the help of an experiment given in your box, page number 95. Next, place the delivery tube of hydrogen gas apparatus in a soap solution as shown in the figure 7.3. The soap bubbles containing hydrogen rapidly rise up in the air. If a burning matchstick is brought near the rising bubbles, they burst to produce a pop sound. As I have already told you that hydrogen gas, when produced in laboratory, it comes with a pop-up sound. This is actually a funnel and the bubbles produced here, this is the water present over here and these are the soap bubbles. Soap bubbles, and it is a soap solution. So the gas produced here is hydrogen gas. And it comes with a pop-up sound. When this experiment takes place and hydrogen is produced, then pop-up sound is produced in it. Next, chemical properties of hydrogen. There are some chemical properties of hydrogen starting with combustibility. What is combustible nature, students? Hydrogen is a combustible gas. It means it does not support combustion process. As oxygen is used for burning process, मतलब ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है जो आग लगाने के काम आती है. हाइड्रोजन कंबस्टिबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता है. ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो कि आग बुझाने के लिए काम आती है. तो हाइड्रोजन कंबस्टिबिलिटी के प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता. प्योर हाइड्रोजन बर्न साइलेंटली इन एयर, मतलब ऑक्सीजन जब बर्न करता है तो वो एक पेल ब्लू फ्लेम देता है. इसी तरीके जब हाइड्रोजन को साइलेंटली एयर में बर्न करने की कोशिश की जाती है तो एक पेल ब्लू फ्लेम ऑब्टेन्ड होता है और फिर से हाइड्रोजन पॉपअप साउंड के साथ ही स्पॉन्टेनियस कंबशन के प्रोसेस को शो करता है. इसको भी आप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से अपने बुक में पढ़ सकते हैं. इट इज गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 96, फिगर 7.5 shows hydrogen is a combustible gas. Starting with the reactions, action with the litmus. Action with litmus. Hydrogen gas is neutral towards litmus paper. इसका मतलब जो litmus paper होता है यानी red litmus paper और blue litmus paper, इसमें जब भी हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है तो लिटमस पेपर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. इट मीन्स हाइड्रोजन गैस ना ही एसिडिक नेचर की होती है ना ही बेसिक नेचर की होती है, वो न्यूट्रल होती है. ठीक, तो लिटमस पेपर के कलर को चेंज ही नहीं करती है. इट नीदर टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड नॉर इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. कमिंग टू एक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ कैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, ये हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इट मीन्स वाटर का फॉर्मेशन होता है. इट मीन्स हाइड्रोजन, 2 moles of hydrogen when reacts with 1 mole of oxygen it gives water. ये वाटर का फॉर्मेशन होता है. ये एक पूरा प्रोसेस होता है और अगर इसी वाटर को तोड़ा जाए इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, ठीक है, ये स्टीम फॉर्म में ऑब्टेन होगा, भाप की फॉर्म में. इसको भी एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से शो किया गया है. आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं. हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म वाटर. किस तरीके से हाइड्रोजन जलती है एयर में कि एयर की कंबशन के प्रोसेस से वाटर का फॉर्मेशन हो सके, कैसे पानी बन सके. और वो पानी जो होता है ये स्टीम के फॉर्म में सबसे पहले ऑब्टेन होता है, फिर इसको एक प्रॉपर कंडेंस प्रोसेस से वाटर के फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है.
एक्शन विद क्लोरीन गैस, कैसे क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन होती है? विद इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्लोरीन एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, आर एक्सपोज टू डिफ्यूज सनलाइट, द मिक्सचर ऑफ गैसेस टर्न्स कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, यूवी रेज आ रही हैं, वो जब H2 रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, इट मीन्स H2 plus Cl2 in the presence of sunlight, direct sunlight, it forms 2HCl। ठीक है, HCl का फॉर्मेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। ये जो एसिड है ये गैस के फॉर्म में ऑब्टेन होता है नेचर में। ठीक, ये हाइड्रोजन था कंबाइंड स्टेट में, ये क्लोरीन गैस थी हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको जब हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑब्टेन हो गई। सो वी कैन से अगर इसे हम डायरेक्ट एक्सपोज कर देंगे सनलाइट में तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लोजिव साउंड के साथ प्रोड्यूस होगा। ठीक, जैसे क्रैकर्स बर्न होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत ही ज्यादा फ्यूम्स देखने को मिलते हैं, उस तरीके की रिएक्शन आपको ये ऑब्टेन हो सकती है। नेक्स्ट, एक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। जब हम हाइड्रोजन को मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो कैसी रिएक्शन होती है? जब कॉपर, लेड ऐसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से जो कि नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक, ऐसे मेटल्स जो कि नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड को ले लिया जाएगा। कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक, तो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक, यहां ये कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ तो कॉपर ऑब्टेन होगा हमें और वाटर ऑब्टेन होगा। ठीक है, इसी तरीके के सिमिलर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी लेड ऑक्साइड में। लेड ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो लेड भी फॉर्मेशन होगा, Pb, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ लेड, देन वाटर इज ऑब्टेन। जब एक विगरस रिएक्शन होगी तो ये स्टीम के फॉर्म में ऑब्टेन होगा, और अगर एक स्लो डाउन रिएक्शन होगी अंडर सम कंडीशंस तो ये हमें वाटर फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट, अ रिएक्शन इन विच मेटालिक ऑक्साइड लूजेस इट्स ऑक्सीजन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटालिक ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को लूज कर देते हैं या अपने ही मेटल्स को लूज कर देते हैं तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, और जो व्यक्ति रिड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो दो तरीके की चीजें हम पढ़ेंगे, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, दो प्रोसेस पहले से पढ़ते आए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। द नेक्स्ट मोर डिफरेंस इज, इसमें रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जो भी मेटल होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। इसके केस में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को शो करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, और जो सब्सटेंसेस रिडक्शन के प्रोसेस को शो करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, सो वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच metallic oxides loses its oxygen to form pure metal is called reduction reaction,
and the property of hydrogen is called its reducing property. तो जो हाइड्रोजन में प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. So students, revise this much topic and you will be provided with the notes and PDF. Thank you and have a nice day.